وزیراعظم نے سڑکوں کے منصوبے کی مخالفت کرنے والوں کو تنگ نظر قرار دے دیا۔ بولے بلوچستان کا خونی ٹریک 2000 جانیں نگل چکا، اسے ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ 2 سال میں 300 ارب سے زائد کے تخمینے سے شاہراہ تعمیر ہوگی۔ ٹیم ورک سے ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی۔ بہترین کاوشوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر پاکستان کی درجہ بندی میں بہتری آئی۔ اب ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہیں۔ حکومت کا ملکی معیشت کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ کہا کہ معیشت کی بہتری اور غیر رسمی مساوی معیشت کا خاتمہ حکومتی اصلاحات کے ایجنڈے کا بنیادی جزو ہے۔ NA-213 کے ضمنی دنگل میں تیر نشانے پر لگ گیا۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور نے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار لال چند مالہی کو میدان بدر کیا۔ 74,000 سے زائد ووٹ سے کامیابی سمیٹی۔ تمام 498 پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ گئے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق صبا تالپور نے 1,48,965 ووٹ حاصل کیے۔ لال چند مالہی کا سکور 74,515 رہا۔ جیت کا اعلان ہوتے ہی پیپلز پارٹی کے کیمپوں میں جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ نشست پی پی رہنما نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ ہارنے والی ٹیم کا حسب روایت دھاندلی کا شور۔ لال چند مالہی نے حامیوں سمیت DRO دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔ ٹائر جلا کر روج بند کر دیا۔ نتائج تبدیل کرنے کا الزام۔ کہا کہ دھاندلی کر کے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ دھاندلی کی تحقیقات تک نتائج روکے جائیں۔ پیپلز پارٹی کی آج حیدرآباد میں بڑے پاور شو کی تیاری۔ سٹیج تیار، کرسیاں بھی لگ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا جلسہ گاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکیورٹی اور ٹریفک سمیت مختلف امور پر بریفنگ۔ شرجیل میمن نے کہا 100 فٹ لمبا سٹیج تیار کیا، 70,000 کرسیاں بھی لگا دی گئیں۔ مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا۔ طبی امداد اور دیگر سہولیات کا بھی بندوبست ہوگا۔ دریائے سندھ پر متنازع کینالز کے خلاف احتجاجی مہم بھی جاری۔ وکلاء آج شکارپور اور خیرپور میں ہائی ویز پر دھرنا دیں گے۔ اڈیالہ کے باہر PTI اور پولیس میں پھر میچ پڑ گیا۔ راولپنڈی پولیس نے بانی سے ملاقات کے لیے آئی PTI رہنماؤں اور بانی کی تینوں بہنوں کو حراست میں لے لیا۔ عمر ایوب، زرتاج گل، حامد رضا، نیاز اللہ نیازی کو بھی قیدی وین میں بند کر دیا۔ پولیس نے چکری انٹرچینج پر زیر حراست تمام افراد کو رہا کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ جیل انتظامیہ نے ملاقات نہ کرائی۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر سلمان اکرم راجہ کا توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان۔ بانی PTI مذاکرات کے لیے تیار۔ ملک میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ KP نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا پاکستان پر حکومتیں مسلط کی گئی ہیں جس سے ملک تباہ ہو گیا۔ غلام ہمارے فیصلے کریں گے تو ہم بھی غلام ہی رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا لاہور ہائی کورٹ بار کے لیے 5 کروڑ روپے گرانٹ دینے کا بھی اعلان۔ PTI والے نسل در نسل غلام ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا گنڈا پور کو جواب۔ کہا علی امین گنڈا پور کی دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں۔ بانی اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے۔ ملک میں ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی۔ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو شہروں میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی۔ گزشتہ دور فسطائیت کا دور تھا۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عقیل عباسی آئینی بینچ کا حصہ بن گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق دونوں ججز کے ناموں پر کثرت رائے سے اتفاق کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے آئینی بینچ میں مزید ججز تعیناتی کی مخالفت کی۔ بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ کہا آئینی بینچز میں ججز نامزدگی کے لیے رولز بنائے جائیں۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے دونوں ججز کی منظوری کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ کہا رولز کمیٹی کا سربراہ ہوں، رولز بننے تک کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ 2 نئے ججز کی شمولیت کے بعد آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 15 ہو گئی۔
पेट्रोल से बचत ना हो तो क्या बलूचिस्तान की सड़कें नहीं बनेंगी? शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमती फैसले पर तनकीद। बोले, आलमी मंडी में कई मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर हुकूमत ने इसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचाया। पुराने बिलों में 10 रुपए तक रिलीफ की गुंजाइश थी मगर फिर भी आवाम को कुछ न मिला। किसान बदतरीन मुश्किलात का सामना कर रहा है। हालात यही रहे तो आइंदा बरस मुल्क को गंदम दरामद करनी पड़ेगी। बास लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार कहा कि तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नज़र नहीं आती। महंगाई की शरह 40% से 1% पर आ गई है। मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में बड़ा इजाफा। मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 19 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36 करोड़ 30 लाख डॉलर से सरप्लस था। पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं, आज तरक्की महंगाई में कमी की बात हो रही है। करंट अकाउंट के सरप्लस में भी 1 अरब से ज़ायद इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब कल्चर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में सालों का जमूद टूट चुका। मुल्क के हालात बहुत बेहतर और बाहर से सरमायाकारी भी आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना करार दे दिया। जायदादों को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने और दुरुस्त इंदराज का मुतालबा कर दिया। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ भी कम करने पर जोर। आलमी बैंक का कहना है तरक्याती बजट का 40% कमीशन की सूरत ज़ाया हो जाता है। ऑडिटर जनरल से 7% कमीशन दिए बगैर बिल क्लियर नहीं होता। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौक़े ज़ाया हो रहे हैं। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं, आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए, अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। फौजी अदालतों के ट्रायल में मुरवजा तरीक़ाकार और फेयर ट्रायल दोनों मैसर होते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल की क्या पोजीशन है, वो कहाँ हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को 2 से 3 दिन का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए, ये क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं है। आईनी बेंच की ख्वाजा हारिस को आज जवाब अल जवाब मुकम्मल करने की हिदायत। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस। आज का अमन और आज़ादी उन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब में शहदा को खिराज अकीदत। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ मादर वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश है। आर्मी चीफ की शहदा के ख़ानदानों के हौसले और इस्तेकामत की भी तारीफ़। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली तकरीब में अता किए जाने वाले एजाज़ात में सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत शामिल हैं। लाहौर, कराची और पेशावर में भी शहदा के अहल खाना में एजाज़ात तकसीम किए गए। अमरीकी असलहा अफगानिस्तान में छोड़ना गलत फैसला था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के साबिक रुकन बैरी रिचर्ड डोनाटियो का एतराफ़। कहा कि साबिक हुकूमत ने इनखला के वक्त गलतियाँ की। अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े असले का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ट्रंप हुकूमत अमरीकी असले के बारे में बेहतर फैसला कर रही है। तालिबान हुकूमत को सदर ट्रंप के मुताबिक फैसला करना होगा। शाला वसदा रवे पंजाब में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर फेस्टिवल का आगाज़। शुरका के ढोल की थाप पर भंगड़े। गुलकारा नसीब उलाल का भी फ़न का मुजाहरा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना। कहा, पंजाबी भंगड़े का कोई मुतबादिल नहीं। पंजाबी बोलने वालों को भी अपनी ज़ुबान और कल्चर पर फ़ख्र होना चाहिए।
पंजाब में शदीद बारिशों, यालाबारी और आंधी की पेशगोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी, तूफान और यालाबारी मुतवक्की। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन फॉल हैं। रेड लाइन, येलो लाइन पर काम हो रहा है। पानी और निकासी आब का मसला भी जल्द हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वफ्द से गुफ्तगू। कहा, निजी शोबे की शराकतदारी में BRT सिस्टम शुरू किए हैं। 134 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट जल्द लाएंगे। IFC वफ्द की सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की तारीफ। सनती इस्तेमाल के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का मशवरा भी दिया। दो इदारों की आपसी चपकलिश से 67,000 हाजियों का हज खतरे में पड़ गया। सऊदी वजारत हज के साथ बरवक्त रवाबित ना करने से हाजियों का कोटा मुतासिर होने का खदशा। हाफिज ताहिर अशरफी ने मोहम्मद बिन सलमान से नजर सानी की अपील कर दी। अमरीकी सदर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का घटिया तरीन तालीमी इदारा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक मजाक है जो नफरत और हिमाकत सिखाती है। हार्वर्ड का अब किसी मयारी तालीमी इदारे के तौर पर शुमार नहीं हो सकता। इसे दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटीज़ की किसी फहरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए। सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोक दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने के लिए मई में हमले का मंसूबा तैयार किया था। सदर ट्रंप ने सिफारती हल को फौजी हल पर फौकियत देने का फैसला किया। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े 7 इदारों और 5 जहाज़ों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान ने जौहरी अफसूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जज का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इशारा। वाशिंगटन के फेडरल जज जेम्स बॉयसबर्ग का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ने तारकीन वतन से मुताल्लिक उनके हुक्म की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तारियों की वीडियो सामने आ गई। एक वीडियो में अहलकारों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर ग्वाटेमाला के तारिक वतन को गिरफ्तार किया। न्यू हैम्पशायर की अदालत में पेशी के मौके पर वेनेजुएला का शहरी भी पकड़ा गया। पाकिस्तानी पहलवानों ने भारत को धूल चटा दी, ईरान को भी चित कर दिया। सह मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप। पाकिस्तान ने भारत को 26 के मुकाबले 37 पॉइंट से शिकस्त दी। ईरान को 31 के मुकाबले 47 पॉइंट से पिछाड़ दिया। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। अली सिस्टर्स समेत 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों में से 4 ने गोल्ड और 1 ने सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान वीमेन टीम ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने चौथे मैच में थाईलैंड विमेंस को 87 रन से शिकस्त देकर मेगा इवेंट का टिकट कटवा लिया। कौमी विमेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन स्कोर किए। सिद्रा अमीन के शानदार 80 रन, कप्तान सना फातिमा की भी 50। जवाब ने थाईलैंड की पूरी टीम 118 रन बनाकर ढेर। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की धाक बरकरार। शादाब 11 जीत की हैट्रिक के साथ टेबल में सबसे ऊपर। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर, कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स 2-2 मैचेस खेलकर 1-1 मैच जीतने में कामयाब। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी जीत का खाता ना खोल सकी। सुल्तान्स 5वें और ज़ल्मी टेबल पर आखिरी नंबर पर विराजमान। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स कल कराची के स्टेडियम में टकराएंगे।